Hello students, welcome back to our online class. I am back with a new video of the subject social science, and you all know that we were studying the chapter 2 journey by primitive men to settled life, students, right? So in the previous video we have discussed about the discovery of fire and will and their uses, right students? So now we will discuss about the changing environment, means how the environment have been changed. So we will learn that one right now. So the changing environment. Let's begin. Around 12,000 years ago, there was a widespread change in the atmosphere of the world. Due to increase in temperature, vegetation and grass field started growing in many areas of the world. As a result, number of grass-eating animals, herbivorous like deer, sheep, goat, etc., increased. Primitive man certainly got benefits of it. They started studying these animals' behavior and thus their mental development started. So students, in the topic changing environment, we were talking about that around 12,000 years ago. मतलब 12,000 years ago पहले जो एटमॉस्फेयर था वर्ल्ड का वो बहुत अच्छा था, वाइड स्प्रेड चेंज हुआ, बहुत अलग से चेंज हुआ. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और ग्रास फील्ड में बहुत ज़्यादा एरियाज़ बढ़ने लगे, ग्रो करने लगे, बहुत सारे एरियाज़ ग्रो करने लगे स्टूडेंट्स. एज अ रिज़ल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब एज अ रिज़ल्ट इसके रिज़ल्ट में बहुत सारे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे जैसे कि डियर, शीप, गोट और एक्सेट्रा, ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इंक्रीमेंट हुई, इसमें इंक्रीज हुई. तो प्रिमिटिव मैन सर्टेनली गॉट बेनिफिट्स. तो इस चीज़ का प्रिमिटिव मैन को बेनिफिट्स हो गया, उनको फ़ायदा हो गया. तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वो लोग इस एनिमल्स के बारे में जानने लगे, इनके बारे में स्टडी करने लगे, पढ़ाई करने लगे कि इनका बिहेवियर कैसा है और इनकी मेंटल डेवलपमेंट किस तरह से होती है. तो उसके बाद उनकी जो दिमागी हालत थी मेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ स्टूडेंट्स. They came in contact with grass, trees, vegetation as well as wheat, barley and other grains. Due to climate change, by using stones, women, men and children collected grains. Because of this curious instinct, slowly agriculture started in India. People started using stones to grow grains. They started growing grains near the banks of the rivers and constructed their houses made up of mud, thatch, means hay and other material in the nearby areas. As a result of it, their nomadic life came to an end and started a settled life. The first companion or friend of his settled life was a dog. Besides, he was also familiar with sheep, goat, cow, buffalo, pig, etc. Gradually, they started adjusting with them too. These animals protected them from wild animals. Thus, they associated with animal husbandry, also along with farming. However, research is being carried out to find out how long he had been using animals to get milk. So students, in the next paragraph we were talking about that the primitive man have came in contact with grass, trees and vegetation. जैसे कि खेती करना, जैसे फार्मिंग करना, ग्रो करना वीट को, बरले को. क्यों? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था उसमें ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ. बाय यूजिंग स्टोन, ये सब चीज़ें वो कैसे कर रहे थे? स्टोन को यूज़ करके. क्योंकि मैन, वुमेन और चिल्ड्रन ये सारे ग्रेन्स को कलेक्ट कर रहे थे. ग्रेन्स मतलब जो हम लोग का खाने का यूटिलाइजेशन होता है, जो हम लोग खाते हैं उस सबको ग्रेन्स करते बोलते, जैसे आटा, चावल, दैट ऑल आर द ग्रेन्स स्टूडेंट्स, ग्रेन्स. ओके. बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट, स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया. मतलब ये जो क्यूरियस एकदम उत्सुकता थी कि किस तरह से कैसे होगा, तो आस्ते आस्ते एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा इंडिया में. मतलब
खेती करना चालू हो गया, फार्मिंग करना चालू हो गया स्टूडेंट्स। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन के थ्रू ग्रेन्स स्टार्ट कर दिए ग्रो करना। उगना तो पड़ेगा ना, उगेगा उसके बाद तो वो चीज़ बनेगा, राइट, हम लोग खाएंगे। तो वैसे पीपल्स वहाँ के प्रिमिटिव मैन उस टाइम वो ग्रो करने लगे और उन्होंने बहुत सारे ग्रेन्स कलेक्ट किए और उन्होंने फिर क्या किया, नदी के पार छोटे छोटे हाउस बनाने लगे। वो लोग किससे बना रहे थे, मड से, थ्रेच से और बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से। पर वो कहाँ बना रहे थे स्टूडेंट्स, पानी जहाँ पे था उसके बगल में ही बना रहे थे, नियर द वाटर स्टूडेंट्स, बिकॉज वाटर इज़ अ वेरी एसेंशियल मोटिव टू आवर बॉडी। विदाउट वाटर वी वॉन्ट बी एबल टू स्टे एज लॉन्ग एज वी कैन, राइट। So that's why water is very much necessary to the human beings, so as well as to the primitive man also. So then after as a result, इसका जो रिजल्ट था, जो नोमैडिक लाइफ थी, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे थे इन सर्च ऑफ फूड, एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड घूमते ही रहते थे, तो वो लाइफ ख़त्म हो गई, एंड हो गया। एंड उसके बाद उन्होंने सेटल्ड लाइफ जी, मतलब एक ही जगह में रहकर जीने की लाइफ उन्होंने स्टार्ट की स्टूडेंट्स। द फर्स्ट कंपेनियन और फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज डॉग। सबसे पहला कंपेनियन फ्रेंड कौन था, डॉग था उनका सबसे पहला कंपेनियन फ्रेंड स्टूडेंट्स। ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विद शिप, वो लोग शिप के साथ भी फेमिलियर थे, गोट, काउ, बफेलो, पिग और बहुत सारे एनिमल्स थे जिसके साथ वो लोग फेमिलियर थे। फेमिलियर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे, ओके। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग विद देम ऑल टू, मतलब प्रिमिटिव मैन आस्ते आस्ते करके वो लोग ये सारे एनिमल्स के साथ एडजस्ट हो गए, फेमिलियर हो गए, एक साथ रहने लगे वो लोग। और ऐसे ही एनिमल्स प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को। सो ये जो एनिमल्स थे वो प्रिमिटिव मैन को प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स से, जो जंगली जानवर होते हैं ना उनसे, क्योंकि वी ऑल नो कि दीज एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट स्टूडेंट्स। देन आफ्टर व्हाट हैपेंड कि उन्होंने सबने प्रिमिटिव में एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिया, मतलब फार्मिंग। वो लोग क्रॉप्स तो ग्रो कर ही रहे थे, साथ साथ एनिमल्स के साथ भी जो उनको प्रोडक्ट मिल रहा था कि उनके रिलेटेड मिल्क प्रोड्यूस करना, तो वो सब चीज़ें एनिमल को हम लोग रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, उसका सब चीज़ें करेंगे, तब जाके ही हमें वो चीज़ एनिमल्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। So they have started animal husbandry also students, and then afterwards for a very long time of research they have known that how animals to get, how been using animals milk to get it out, मतलब किस तरह से एनिमल के मिल्क को निकाल सकते हैं हम लोग और उसे यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली इससे हमें ये पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए अपने लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखा, वो भी खुद से ही उन्होंने सीखा, विदाउट एनी हेल्प। दे हैव लर्न बाय देयर ओन फैक्ट्स, ऑन स्ट्रगल्स, राइट। तब जाके हमारे लिए अभी बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि हमें तो सब पता ही है, बट उनके वजह से हमें ये सब चीज़ें पता है स्टूडेंट्स। दैट्स राइट, करेक्ट। नाउ let's see the next paragraph students. The next paragraph is settled life, food, shelter and clothing. So let's see this one. Early life and pastoral activity transformed primitive man's life into settled life. We know that agricultural land cannot be left out because it takes some time for crops to grow. It needs water and crops have to be harvested when grains are ready. This process led to the beginning of settled life in India. He also started making earthen pots for the storage of grains. As the wandering life came to an end, there was a widespread change in their food habits, clothes and shelter. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near their settlements. He lived in houses made up of mud, thatch and other such materials.
He did agriculture. He made farming implements of stone which included spade, chisel and sickle. The following table shows us the places in India where grains, shuttle, weapons and remains of animals have been found. So students, what happened in this topic? We will discuss about the settled life. सेटल लाइफ मतलब एक ही जगह पे रहना और उसकी फूड, शेल्टर, रहने का जगह, खाने का जगह और किस तरह से कपड़े पहनते थे उसका, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे. सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इज़ दैट इन द अर्ली लाइफ, ये जो पुराना लाइफ था उस टाइम में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए. प्रिमिटिव एक जगह से दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, बट नाउ दे आर लिविंग इन अ सेटल्ड लाइफ. दे हैव देयर ओन एग्रीकल्चर लैंड, उनके पास एक खुद का एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उनके पास वाटर है, खाने के लिए बहुत सारा ग्रेन्स है, तो सब चीज़ें वो स्टोर रख करते थे. तो ये जो उनकी लाइफ थी, बिगिनिंग स्टार्टिंग लाइफ थी सेटल लाइफ की, मतलब एक ही जगह पे रहने की जो उनकी लाइफ थी वो अब स्टार्ट हो गई थी. अब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी स्टूडेंट्स. तो वो सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए कुछ जगह, कुछ पोर्ट तो चाहिए ना, कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो चाहिए ना कि वो सब चीज़ें जो ग्रेन्स है, जो फूड्स है, वो सब स्टोर कर सके. तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के पोट्स बनाने लगे जिसको ग्रेन्स को स्टोर कर सके, सारे ग्रेन्स को संभाल के रख सके, इसलिए मिट्टी के पॉट्स बनाने लगे. तो उनकी जो वंडरिंग लाइफ थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई थी, और ये ख़त्म हो गई थी. इसके वजह से स्टूडेंट्स, इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो किस तरह से रहते थे पहले जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब, तो वो चेंज हो चुका है क्योंकि उसकी फूड हैबिट्स चेंज हो गई, क्लोथिंग हैबिट चेंज हो गई और सेटल्ड लाइफ वो लोग अब जीने लगे. तो एक्चुअली देखें तो वो लोग खाने में क्या खाने लगे, उसके बाद वो लोग व्हीट खाने लगे, बरले खाने लगे, मीट खाने लगे, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया था फिश और फ्रूट्स खाने भी. क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही जगह पे सेटल्ड थे, वो लोग कहीं और अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी. उनके पास रहने की जगह थी, हाउसेस उन्होंने बनाया था, मड, थैच और बहुत सारे मटेरियल से वो लोग एग्रीकल्चर करने लगे, और उन्होंने फिर फार्मिंग करना भी स्टार्ट कर दिया. स्टोन के थ्रू, वो जो स्टोन्स बनाते थे उसके थ्रू उन्होंने चालू कर दिया, स्पेड, सीजल और सिकल के थ्रू. तो बहुत सारी चेंजेस हमारे प्रिमिटिव मैन्स के लाइफ में आई थी स्टूडेंट्स. इट इज़ वेरी अमेजिंग, राइट? दिस इज़ द टेबल यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक. ग्रेन्स, सेटलमेंट्स, वेपन्स एक्सेट्रा एंड एनिमल्स एंड प्लेसेस. मतलब ये सारे जो ग्रेन्स है ये सारे इस प्लेसेस में उस टाइम में मिलते थे स्टूडेंट्स. तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में. 1 नंबर इज़ व्हीट, बर्ली, शिप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स. ये कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़. अभी कहाँ है वो? पाकिस्तान में. राइस, बोन्स ऑफ एनिमल्स, कोल्डी हावा, उत्तर प्रदेश. राइस, शिप, गोट, स्टोन इम्प्लीमेंट्स, महागधा, उत्तर प्रदेश. ह्यूमन सेटलमेंट, रीनो, लंगनाच, लहगनज, गुजरात. व्हीट, लेंटिल, डॉग्स, पिट हाउसेस, बुर्जोम एंड गुफक्रल, कश्मीर. बफेलो, बुल इम्प्लीमेंट्स, चिरांड, बिहार. तो ये सारी जगहों में ग्रेन्स और ये सारे सेटलमेंट्स वहाँ पे पाए जाते थे स्टूडेंट्स. ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो यू जस्ट हैव टू रीड दिस ऑल दिस. ओके, लेट्स बिगिन द नेक्स्ट वन. We get information about their human settlements and cattle rearing from places like Burjom, Gufkral, Hurangi, Mehergarh, Langnaj and Bhimbhatka, which were discovered by our archaeologists. From places such as Mehergarh and Inam Gaon, we even get information about their houses and farming. They used to grow grains like barley and bajra. Sharp stone implements have been found from places like Mehergarh and Inam Gaon. These might have been used for farming. So students,
हमें ये बात पता चलती है, वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब प्रिमिटिव मैन एक जगह पे रहने लगे तो वो लोग जो उनके एनिमल्स थे उनको रियलिंग मतलब उनको थोड़ा घुमाने के लिए कहाँ कहाँ लेकर जाते थे और वो लोग कहाँ कहाँ प्लेसेस में रह चुके थे। कौन कौन से थे वो? बरजम, गुफक्रल, हुरंगी, मेहरगढ़, लंगनाज एंड भीमबट्टा। ये सारे प्लेसेस आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू, जो आर्कोलॉजिस्ट कौन है मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री जो पुरानी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट ने ये सब चीज़ें फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स कि जो प्लेस है जैसे कि मेहरगढ़ और इनाम गांव, इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे हाउसेस थे और फार्मिंग भी होती थी उस टाइम में। और वो लोग क्या ग्रो करते थे? बार्ले और बाजरा ग्रो करते थे। उसके बाद मेहरगढ़ और इनाम गांव में और एक चीज़ पता चली है कि वहाँ पे बहुत शार्प स्टोन्स इम्प्लीमेंट्स भी होते थे, मतलब शार्प एकदम स्टोन आप बोल सकते हो, स्टोन ग्रेन्स स्टोन होते थे, वेपन्स होते थे जिसके थ्रू वो लोग एनिमल्स की शिकार करते थे और वही काम उनको आता था फार्मिंग करने में, खेती करने में स्टूडेंट्स। Mehergarh may be considered to be the oldest village of ancient India. You see Mehergarh is in the map. Farming of barley and wheat started from here. They reared sheep and goat. They did farming. So students, मेहरगढ़ आप ये पिक्चर देख सकते हो भी इजीली। ये जो पिक्चर है ये मेहरगढ़ के ही पिक्चर है। इस तरह से आर्कोलॉजिस्ट ने ये सब चीज़ें फाइंड आउट की थी स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में आप बोल रहे हैं कि ये जो मेहरगढ़ है ये सबसे ओल्डेस्ट विलेज है एंशिएंट इंडिया में, मतलब पुराना जो इंडिया था उसका सबसे ओल्डेस्ट पुराना एक विलेज है मेहरगढ़। वहाँ पे आपको फार्मिंग होती थी बार्ली की और वीट की। यहाँ पे क्या उगते थे, ग्रो करते थे, बार्ली और वीट ग्रो करते थे और वो लोग शिप और गोट को भी रियर्ड करना यहाँ पे ही जाते थे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स। And stored grains. Bones of animals have also been found here. They lived in rectangular houses. Small burns have also been found in these houses. तो स्टूडेंट्स वो लोग पॉट्स में ग्रोन ग्रेन्स को स्टोर करते थे और जो एनिमल्स के बोन्स होते थे वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट को वो भी मिले हैं। और वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस होते थे और स्मॉल बंस मतलब स्मॉल जगह भी बनाई गई थी। ये सब हाउसेस में आर्कोलॉजिस्ट को ये सब चीज़ें मिली है स्टूडेंट्स, देखा है उन्होंने। According to the evidences found in Mehergarh, they honored the dead by burying them. Many such evidences have been found here. Evidence has been found at one place that goat was also buried along with men. This suggests their belief that there is life after death also. In the same way, a place named Inamgaon has been found in Maharashtra, from where remains of dead bodies of children have been found. They lived in round-shaped houses, reared cattle, and did farming of bajra and barley. So students, according to the evidences मतलब evidences का मतलब होता है सबूत। So evidences के सबूत के थ्रू हमें ये पता चला है कि मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ पे ऐसे जो मर जाते थे उनको दफनाया जाता था। बरिंग मीन्स दफनाना, मिट्टी में दफना देना। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे पहले ऐसे होते थे। तो उनको ऐसा एविडेंस मिला है वहाँ पे कि एक जगह पे उनको ऐसा मिला कि गोट होता है ना, गोट वो भी इंसान के साथ दफनाए गए हैं। गोट भी इंसान के साथ दफनाए गए हैं और दे सजेस्ट देयर बिलीफ, मतलब उनको इतना सजेशन है, बिलीफ है कि लाइफ के बाद भी मतलब डेथ के बाद भी एक लाइफ है। वो लोग ऐसा सोचते थे कि जो लोग मर गए हैं वो लोग की दूसरी जर्नी चालू हो गई है। तो प्रिमिटिव मैन उस टाइम में ऐसा सोचते थे स्टूडेंट। और एक्चुअली देखें तो अभी भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट है कि माना जाता है कि जब कोई डेथ कर देता है, कोई मर जाता है, उसके बाद भी एक जर्नी स्टार्ट होती है।
मतलब उसके बाद भी एक लाइफ ज़रूर है स्टूडेंट्स, ऐसा बोला जाता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं इस चीज़ को और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में स्टूडेंट्स, कि ऐसा होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट्स? ओके, इन द सेम वे, सिमिलर वे, एक गांव है जिसका नाम है इनाम गांव। वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे डेड बॉडीज़ मिली थी चिल्ड्रंस की, मतलब बच्चों की डेड बॉडी मिली थी, बरीड की हुई है। और वहाँ पे जो घर थे वो राउंड शेप के घर थे, गोल शेप के घर थे। और वहाँ पे भी कैटल्स पाए गए, बहुत सारे एनिमल्स पाए गए हैं। और वहाँ पे वो लोग फार्मिंग करते थे, खेती करते थे, किसकी? बाजरा और बरले की खेती करते थे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर 2 इज नाउ कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। हमारा फुल चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, प्रिमिटिव मैन बाय सेटल लाइफ के रिलेटेड। नाउ यू कैन सी दीज एक्सरसाइजेज, ऑल दिस विल हैपन, यू कैन डू इट, नॉर वी विल हैव टू डेफिनेटली कंप्लीट द वर्कबुक। आप लोग के सबके पास वर्कबुक तो है ही, तो वी विल डू द वर्कबुक क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट। ओके स्टूडेंट्स, so now I hope that you have liked my video. This video was very much helpful to you. If you have any query, so just comment me down below students, okay, because I am there for you to help you. So till there you have to do 3 things. Students, please like, share and subscribe students. Subscribe my channel students, because if you wanted to get new videos of my channel, so you should have to subscribe it, okay students, and like my video. Bye students and have a nice day. Stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up.